Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us with your queries on 2331 4444, 2342 1050 and 23310464. For listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ शेयर बाजारों पर भी नजर डालेंगे। और श्रोताओं, आज सोमवार है, इसलिए हम आपके फोन भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में हम आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं देते। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे फोन नंबर है 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता फोन नंबर से पहले 011 जरूर लगाएं। प्रश्नों के उत्तर और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Benchmark domestic indices end with losses of over 0.5%. Sensex falls 451 points. Nifty settles below 23,650. Markets in Asia and Europe display mixed trend. And inflation likely to decline in 2025, says RBI Governor Sanjay Malhotra. Also advises caution as the medium-term outlook continues to remain challenging due to extreme climate events, amongst others. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक 0.5% से अधिक के नुकसान पर हुए बंद। सेंसेक्स 451 अंकों के नुकसान में रहा। निफ्टी 23,650 के नीचे आ गया। एशिया और यूरोप के बाजारों में रुख मिला जुला रहा और वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति कम होने की संभावना है, कहा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के चलते मध्यम अवधि में स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेगी। और अब आपको बता दें कि शेयर बाजार में आज कैसा प्रदर्शन रहा। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज 0.5% से अधिक के नुकसान पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.57% के नुकसान से 451 अंक कम होकर 78,248 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.71% की गिरावट से 168 अंकों का नुकसान दर्ज करते हुए 23,645 पर बंद हुआ। हालांकि विस्तारित बाजार में रुख मिला जुला रहा। मिड कैप सूचकांक में 0.13% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई, लेकिन स्मॉल कैप सूचकांक लगभग 0.5% के नुकसान। Benchmark domestic equity indices today ended with losses of over 0.5%. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, lost 451 points or 0.57% to close at 78,248. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, fell 168 points or 0.71% to end at 23,645. Meanwhile, the broader market indices at BSE closed mixed. The mid-cap index ended up by 0.13%, whereas the small cap index shed almost 0.5%. In the Sensex index, 23 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Tata Motors plunged over 2.2%, Titan lost more than 1.6%, and Mahindra dropped over 1.5%. Conversely, among the top gainers, Zomato surged over 4%, Tech Mahindra climbed 2% and HCL Tech rose nearly 2%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 20 sectors ended in negative territory. In the top laggards, metal as well as capital goods both dipped over 1.8% each. Services shed over 1.4% and auto lost more than 1.3%. Meanwhile, among the top gainers, healthcare gained over 1%, telecommunication advanced 0.5%, and focused IT added nearly 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,636 companies declined, shares of 1,487 companies advanced, while shares of 144 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 69 companies hit their 52-week high, while 97 hit their 52-week low. और अब हमारे साथ हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ गए हैं
हैं मुंबई से सुब्रमण्यम जी. वार्म वेलकम टू यू ऑन आकाशवाणी एंड मार्केट मंत्रा. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Yeah, thank you. Good evening. जी. I have a query with respect to the alternatives to physical gold. So previously we used to invest in sovereign gold bonds, but in the last few months there are no issuance of sovereign gold bonds. So what are the alternatives now available? Like there are gold and silver ETFs, and similarly we can trade on MCX. So I want to know which is better and what are the options available to the investors. Yes, first of all, as far as sovereign gold bonds are concerned, you can always buy them off the market also, not necessarily that you need to buy them at the inception only. So that is still existing. Secondly, what you said is correct. You could buy them, the future contracts. Future contracts are actually people who are wanting to buy on, whether you buy on, MCX or other commodity exchanges, where you actually buy them at a future price. Normally that is traders who actually buy bulks of them. So that's where it is. Where as far as alternatives are concerned, there are other bonds which are coexisting, which are infrastructure bonds are there, government RBI bonds are there, various other bonds are available if you want to really invest in. But some of them are tradable if they are AAA rated or A rated bonds. If they are something like RBI, they are non-tradable bonds. So that you need to look at. Apart from gold, silver is also there, and other precious metals are also present in the market, which you could about in terms of investment look at them. और अब बता दें अपने श्रोताओं को कि अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया मामूली तेजी के साथ 85 रुपए 53 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. दिन के कारोबार में 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला सूचकांक 107.81 पर था. अमन जी, आज हमने देखा कि बाजार में खासी गिरावट हुई, लगभग 450 अंकों की. जो वर्ष है वो समाप्त होने वाला है, कैलेंडर ईयर कल खत्म हो रहा है. कैसे देखते हैं आप इस वर्ष को, और आने वाले वर्ष में क्या आपको आशाएं हैं शेयर बाजार से? देखिए जी, जरूर गिरावट देखने को मिल रही है, और कुछ 1-1.5-2 महीने से हमें बीच बीच में देखने को मिल रहा है कि गिरावटें हो रही हैं. जबकि अगर पूरा साल हम लेके चले, जैसा आपने कहा 24 का, तो काफ़ी हमें उछाल भी देखने को मिले हैं. और जो गिरावटें हैं, अगर हम नेट लेके चलें तो हम पॉजिटिव ही रहे हैं. और ये गिरावटें जो अभी हमें पिछले 1-1.5 महीने में देखने को मिल रही हैं, वो 2 कारण मुख्य कारण है. वो हिंदुस्तान की वजह से नहीं. एक तो कारण है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, जिनका रिजल्ट अभी आया है, और अभी उन्होंने टेक ओवर करना है अपना ऑफिस, तो अनसर्टेनिटी थोड़ी बनी हुई है. दूसरी चीज, फाइनेंशियल क्लोजिंग जो होती है यूरोप की और अमेरिका की और काफ़ी सारे देशों की विश्व में, वो जनवरी से दिसंबर होती है, जैसे हिंदुस्तान में अप्रैल से मार्च होती है. तो इस तरीके से उस वजह से काफ़ी कंपनीज को अपने जो एनुअल रिजल्ट होते हैं अच्छे दिखाने के लिए, जहाँ जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होता है, वो वहाँ से विड्रॉ करके अपनी बैलेंस शीट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. और फिर हम देखते हैं कि वो वापस निवेश करना शुरू करते हैं जो पहले हफ्ते जनवरी के अंदर होगा. बिकॉज पहले हफ्ते के अंदर छुट्टियों पे होते हैं ज़्यादातर लोग, ट्रेडर्स को छोड़ के, तो इसलिए पहले 1 हफ्ते का लैग रहता है. तो 5 या 6 तारीख के बाद हमें दोबारा देखने को मिलेगा कि मार्केट्स ऊपर उछलती नजर आएंगे. एंड नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल व्हिच इज कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली. दैट्स योगेश शर्मा. मिस्टर शर्मा, वेलकम टू मार्केट मंत्रा. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. आप सभी को नमस्कार. नमस्कार. मेरे सवाल ये है, पहले मेरी एक ऑब्जर्वेशन है. मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि मार्केट मंत्रा की बड़ी प्यारी सी ट्यून है जो बंद कर दी गई थी. बाद में मुझे किसी ने बताया कि वो शोक की वजह से बंद करी गई है, जो मनमोहन सिंह जी के जाने की वजह से हुआ. तो मेरा सवाल वही से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि कई लोग कहते हैं कि मनमोहन जी ने कुछ गोल्ड के लेकर के ऐसी नीति बनाई थी जब भारत कर्ज में डूब रहा था, तो उन्होंने उससे उबारा था. तो मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा कि वो क्या था एग्जैक्टली. और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कमोडिटीज में जो डायमंड का होता है, डायमंड जो होते हैं और जो इस तरह की आभूषण होते हैं, गोल्ड और सिल्वर के अलावा, क्या इनको भी शामिल किया जाता है कमोडिटीज में, डायमंड को? देखिए जी, जो कमोडिटीज़ होती हैं, कमोडिटीज़ एक्सचेंजेस होते हैं, वो ट्रेड करते हैं. जो जहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर्स आते हैं जो बड़े चीज़ों में ट्रेड कर रहे हैं, उनको ट्रेड किया जाता है. इसमें डायमंड भी एक कमोडिटी है, स्टील है, मेटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमोडिटीज़ में मानी जाती हैं. जहाँ तक आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करी, उन्होंने एक्चुअली गोल्ड को प्लेज किया था. एक टाइम था जब हमें पैसे की ज़रूरत थी, तो जैसे एक आम आदमी अपने गोल्ड को रख के, गिरवी रख के पैसा उठाता है बैंक से या एक NBFC से या एक मनी लैंडर से,
इसी तरीके से हमने भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से पैसा उठाया था और उन गोल्ड को रखा गया था बाहर। फिर हमने सेफ्टी के पर्पस से भी रखा था। जो आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले हिंदुस्तान काफ़ी सारा गोल्ड अपना वापस लेके आया है, अपने लॉकर्स में यहाँ पे इंडिया में रखा है। वो ऐसे ही है जैसे हम एक बैंक में लॉकर खोलते हैं, तो इसी तरीके से काफ़ी सारी कुछ कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिक जो लॉकर्स फंक्शनलिटी देती हैं कि जहाँ पे कंट्रीज़ अपने गोल्ड को रख सकती हैं। अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है और भी कुछ देश हैं, तो वहाँ पे पैसा दे के उसको रखा जाता था। हिंदुस्तान की क्षमता, सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो पैसा ना खर्च करके उसको अपने यहाँ ही रखें, जैसे आप अपने घर में ही एक लॉकर में रखें, ना बैंक के रखते हुए, वही तरीके से रखा गया था। ये दो चीज़ें जो हैं गोल्ड के प्रति डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रहे, हुई थी। Mr. Agarwal, we were talking about the Indian markets, and like you said, if you look at the overall performance of the Indian markets in the calendar year 24, despite the volatility that we have been seeing in the last few weeks, and it's been a net positive for the Indian markets. So, how significant has been the role of the domestic DIIs and the domestic mutual funds in this net overall positive, markets that we have seen overall? True. As far as DIIs are concerned, even if you look at today's ratios, the DIIs have been very high as compared to the FIIs which have actually withdrawn. However, the FII withdrawals have been negative. That's why we've seen a fall which has happened. But the role of domestic investors post-2020 has been going up steadily, and it has gone up extensively high in the last 1.5 year. As far as mutual fund investments are concerned, even those have gone up, and even small investors who did not think of investing have started investing, which includes people like senior citizens, young generation people. They have started saving some money and putting it in the markets, and so we have seeing a brand of people, not only a mid-working cap person between the age of 35 to 55 or 65, which used to generally invest in the early times. We're seeing a larger range now investing. So I think the markets are going deeper and stronger over the day. और अब लेते हैं अपनी अगली स्टोरी जो जुड़ी हुई है आने वाले बजट से, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बजट ऑफ कोर्स 1 फरवरी को अनाउंस होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में 6ठी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट पर परामर्श के सिलसिले में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय के सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले आज ही सुश्री सीतारामन ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट अगले साल की 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्री सीतारामन लगातार 8वीं बार बजट प्रस्तुत करेंगी। Moving on, newly appointed RBI Governor Mr. Sanjay Malhotra today said that inflation is likely to decline in 2025, allowing purchasing power to recover while providing monetary policy more headroom to support economic activity. Expressing his views in the foreword of the December 2024 issue of the Financial Stability Report, or the FSR, that was released earlier in the day, Mr. Malhotra further said that the Indian economy is expected to improve after a slowdown in the first half of financial year 2024-25. He said that consumer and business confidence remain high and the investment scenario is brighter as corporations step into 2025 with robust balance sheets and high profitability. The RBI governor has, however, advised caution as the medium-term outlook continues to remain challenging, with downside risks from possible intensification of geopolitical conflicts, sporadic financial market turmoil, extreme climate events, threats from new and emerging technologies, and rising indebtedness. The December 2024 issue of Financial Stability Report reflects the collective assessment of the Subcommittee of the Financial Stability and Development Council on the resilience of the Indian financial system and risks to financial stability. इससे पहले कि हम अगले कॉलर की ओर चलें, हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि श्रोताओं, आज आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है, सोमवार है और आप हमें फोन करके सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट अमन अग्रवाल जी, उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स है 23314444,
23421050 और 23310464। और अब कॉलर है हमारे कोलकाता से अतानु साहा जी। बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए अतानु जी। हाँ जी, नमस्कार। व्हाट इज pre-budget? What is pre-budget and how is it conducted and what it's important on market? Thank you. You see, pre-budget meetings are held by the finance minister regularly, not now, but even in the past, to assess and get inputs from various ministries and departments. And at times, these are held with the chambers, with the economists and others. Even the Prime Minister Advisory Council also gives suggestions from time to time. So these budget meetings are held primarily to help redesign or think about if there is a focus which is required in a specific area, which may be not considered in the budget outlays. And these are very critical because you see everyone is in the office are moving in one direction. They have outlays which come up, but then these meetings help bring out the critical components which might have been overlooked when doing a normal course of business, and they help redesign and prioritize the growth component of a country. And now next, let's take the next call, which is coming in from Delhi. That's our listener Rohan, who's calling us. हेलो जी रोहन, मार्केट मंत्र में स्वागत है। अपना सवाल पूछें। बताएं। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि आने वाले बजट जब आ ही रहा है तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, जो बडिंग सेक्टर्स हैं वो एआई बेस्ड सेक्टर्स हैं, ईवी बेस्ड सेक्टर्स हैं। डिफेंस काफ़ी तेज़ी पे चल रहा है। काफ़ी समय से हिंदुस्तान का डिफेंस पिछले 4-5 सालों में काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है और ग्रोथ भी हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सेगमेंट्स हैं उनमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि जो हमारा प्रोडक्शन लेवल अभी भी काफ़ी कम है, बट फिर भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भारत सरकार ने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे और एग्रो बेस्ड स्ट्रक्चर्स पे ग्रोथ किया है और ऑर्गेनिक ग्रोथ स्पेसिफिकली हो रहे हैं। इसके अलावा जो है हेल्थ केयर सेक्टर है एक जो काफ़ी पोटेंशियल रखता है और थोड़ा बहुत ग्रोथ हमें देखने को इस साल की बिगनिंग में और लास्ट ईयर देखने को मिला था उसमें। Mr. Agarwal, the new governor Sanjay Malhotra, he has, like I was just reading, that he has advised caution as medium-term outlook continues to remain challenging, and specifically, mentioned geopolitical conflicts that you were mentioning earlier. Correct. What are the if we look at it, these are challenging times, of course, but from the point of view of the market, the volatility, how can an investor, prepare himself or herself to take on this volatility, to tackle this volatility? You see, sudden impacts are difficult to actually calibrate or even forecast, but certainly some volatilities can be taken care of, like the war situation based on volatilities or oil price rise which are happening. The important component here is to actually listen to programs like Market Mantra and all, and also look at not only Market Mantra but global programs and reports which are there and releases which come out from organizations like OPEC or OECD or World Bank, IMF and others. There are small releases which come out almost on a weekly day basis, and that will help them get in glimpse of what is expected to happen tomorrow. Sudden change, no one knows. Course. Like we know very well that Trump is to take office, so that kind of an uncertainty is already bulbing up, and they're not clear as to what may happen, what kind of decisions he may take. He has been known to be taking very hard decisions in the past, and that is also creating some kind of a setback in the market, not being bullish when wanting to wait to see what does he come up with. And very briefly, आपको लगता है कि जो एक हमेशा सब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, सो लॉन्ग टर्म में अभी भी सिनेरियो इज पॉजिटिव? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म में हमेशा पॉजिटिव रहता है बिकॉज आपका ओपिनियन रहना चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर वन इज. If he's a day trader, then there's a long-term perspective is not right. He has to look in for day, what is going on, what is not going on, what are major movements in the day within the country and overseas. But if he is a person who is sticking on medium term, then he can actually, if it is going down, retail investors then like he can look at long term, and he should keep that perspective and hold on, not be in a rush to just chase like a herd movement कि कुछ गिरा तो एकदम से बेचना शुरू कर दिया है, कुछ खरीदने लगे तो इमीडिएटली खरीदने लग गए. थोड़ा सा स्थिरता दिखानी जरूरी है जब वॉलेटाइल टाइम्स
टाइम्स होते हैं, और ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स, वो इसी में पैसा बनाते हैं वॉलेटाइल टाइम्स में। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकुंद जी, जो महाराष्ट्र से हमें कॉल कर रहे हैं। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते मैम, मार्केट मंत्री पूरे टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्ते और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सवाल ये है, जैसे कि एक ही पैन नंबर पे नेशनल बैंक में एफडी किया 5 लाख का इंश्योरेंस रहता है, एक ही पैन पे हर एक, समझो नेशनल बैंक के अलग अलग किया तो हर एक को एक ही पैन पे इंश्योरेंस मिलता है क्या? हाँ जी, देखिए जो 5 लाख का कवरेज है जिसको सिक्योर कराया है भारत सरकार ने आरबीआई के द्वारा, और हर एक बैंक को करना होता है। इसमें एक पैन कार्ड के हिसाब नहीं होता है। ज़्यादातर आपकी एफडीज एक ही पैन कार्ड पे होती हैं। कुछ लोग जो गलत काम करते हैं वो मल्टीपल पैन कार्ड्स यूज़ करते हैं, पर उसको ना लेके चलें, एक ही पैन कार्ड सभी के पास होता है, चाहे आप इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। वो अलग अलग अकाउंट्स के ऊपर है। मतलब अगर आप सपोज एक बैंक में भी 2 अकाउंट होल्ड कर रहे हैं तो उन दोनों अकाउंट के ऊपर 5-5 लाख रुपए का आपका सिक्योरिटी है। अगर सपोज आप कोई ज्वाइंट अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, कोई आप सिंगल अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, एक ही बैंक में है, अलग अलग, अगर 10 बैंकों में होल्ड कर रहे हैं तो 10 बैंकों में 5-5 लाख का। इसीलिए अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आजकल रेट भी बड़े अच्छे मिल रहे हैं, उनको डाइवर्सिफाई करके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में खोलें और नॉमिनेशन करना ना भूलें, ताकि अगर कुछ हो जाए किसी को भी तो वो पैसा आपके निर्धारित लोगों तक पहुंच सके। एंड we are getting the next call once again from Delhi, and that is our listener Sukhdev, who's calling us with his query. Mr. Sukhdev, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Madam, good afternoon to everyone. Good afternoon. Madam, my question is regarding dollar. In 1966, against $1 we were paying rupees 7.50, and now we are paying 85.50. I think rupee is stronger than 1966 nowadays. I want expert comments. Sure. देखिए जी, रुपये जब हमें आज़ादी मिली, when we got independence in 1947, our rupee was $2 for a rupee. At that time we were very strong. We were 98% importing country. Everything we were eating and drinking and wearing was imported practically. But even then our currency was much, much stronger. That means for 1 rupee, 50 cents what was the exchange at that time. Today, if you want to really buy, we have to give 85 rupees as of today to buy $1. That means our currency has actually gone down and weakened. Economically, we do not look at it that prospectively, because your per capita income also grows accordingly, and then you see what kind of per capita income do you have, and do you have the capacity to buy some of these goods and services. So accordingly, rupee has certainly, when you compare 1970 when 7 rupees a dollar was there, we have weakened in practical terms if you look at only that component. But when you look at the GDP growth perspective, we are amongst the top 3 world countries in foreign exchange reserves. We are the top 4 countries which have the largest foreign exchange reserve. If you look at the growth in startups or movements in SMEs or EV sectors, even defense, the growth sectors, these are some sectors where we have shown extensive resilience and growth, and so we are amongst the top few countries around the world which does it. So that way India has a much stronger position as against 1947 or 67. But yes, if you only look at dollar and exchange rate, then we are weakening. अमन जी, जो न्यूली अपॉइंटेड आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने आज ये भी कहा कि उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में इन्फ्लेशन नीचे आएगी और ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। हमने देखा कि पहली छमाही में थोड़ा से स्लो डाउन के संकेत थे। सो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कॉर्पोरेट रिजल्ट से, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो अभी भी उच्च स्तर पे बना हुआ है। देखिए, जहाँ तक बिजनेस कॉन्फिडेंस है, एनरोलमेंट्स हैं ईपीएफओज में या क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, वो इतने खराब नहीं देखने को मिले हैं, जबकि थोड़ा फॉल हुआ है। ये हमें समझना जरूरी है कि जब भी एक स्तर बढ़ता है तो आप उसी रेट से ग्रो नहीं कर सकते हैं जिस रेट से पहले ग्रो कर रहे थे। एवरी सक्सेसिव ईयर योर ग्रोथ गोज डाउन। जैसे एक बच्चा ग्रो करता है, इसी कैसे आपके रेट्स और ग्रोथ भी ग्रोथ करती है। इसलिए हमें उतने रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट हाँ, अगर गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन कम होगा तो ये एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज एक आम आदमी के लिए एक चीज़ें खरीदने के लिए, कंजम्पशन के लिए चीज़ें चाहिए, वो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कम होगा तो एक अच्छी चीज़ रहेगी, स्ट्रेंथ
उसको बढ़ाएगी स्ट्रेंथ को। और जो आज उन्होंने कहा है उससे कोई इंडिकेशन मिल रही है कि फरवरी की जो पॉलिसी आएगी उसमें वो इंटरेस्ट रेट को लेके क्या फैसला लेंगे, या उसके लिए अभी हमें बजट का पहले वेट करना पड़ेगा? नहीं, देखिए उसके लिए बजट का तो ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बट जनवरी के अंदर मेजर कंट्रीज में कुछ आ रहे हैं चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका फर्क जो है हमारी मार्केट्स पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर मैं ट्रंप की बात करूं, जब उनको इलेक्शन जीता तो उन्होंने अगले दिन कह दिया कि हम 50% हम टैक्सेस लगा रहे हैं इन कंट्रीज की बात, फिर इंडिया के ऊपर भी आ गए वो, अच्छा फिर और मूवमेंट्स के ऊपर भी चीज़ों पे आएंगे। तो अगर वो चीज़ें टाइप की चीज़ें आ रही हैं तो उस केस में फ़र्क पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर, कंजम्पशंस के ऊपर। ओपेक का भी अभी जैसे देखेंगे, अब मार्केट ओपन मार्केट में तो कम रेट पे है, पर अगर हम बर्न पे देखें तो वो बढ़ रहा है उधर। तो इसलिए कुछ ये चीज़ें हैं जो रेट्स को बढ़ाएंगी, घटा सकती हैं। उसका इफेक्ट जनवरी के एंड तक ही हमें पता चल पाएगा कि आगे जाके क्या होगा। बजट का जरूर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नॉर्मली रहता है, क्योंकि सरकार ने एक बड़े सुदृढ़ तरीके से प्रायोरिटाइज करके अलग अलग चीज़ों पे बजट, और एजुकेशन और हेल्थ को देखते हुए पिछले 3 बजट, पहले कृषि पे ज़्यादा फोकस था, अब एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी देखते हुए काफ़ी एलोकेशंस किए हैं पिछले 3 सालों में। और फरीदाबाद से है हमारे अगले कॉलर प्रेम पुजारी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप गोल्ड के बारे में कहते हैं, प्योर गोल्ड खरीदिए बिस्किट के तौर पे, अब ज्यादा बड़ा होता है तो वो ईट के तौर पे आता है, क्या 1 किलो में लिया जाए तो उसके लिए हॉलमार्क भी उसमें जरूरी होना चाहिए। ये इसके लिए आपको कुछ क्या किस टाइप का हॉलमार्क होता है? क्या देखिए हॉलमार्क जो है एक ये सरकार की तरफ से, BIS की तरफ से एक मापदंड है क्वालिटी का। जैसे खाने के अंदर देखें तो FSI अगर लिखा होता है या और कुछ लिखा होता है तो चीज़ों, जैसे दवाइयों में भी ऐसे ही TUV हैं और चीज़ें हैं, उसका स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात है। अगर आपको जहाँ से आप खरीद रहे हैं विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास पात्र की बात है, अगर विश्वास है तो आप बिना हॉलमार्क के भी खरीदेंगे तो आपको सामान अच्छा मिलेगा। बट अगर आपको विश्वास नहीं है और आपको पता नहीं कि विश्वास आपके घात ना हो, क्योंकि आप इतना बड़ा, जब 1 किलो के बिस्किट की बात कर रहे हैं तो ये छोटा सोना नहीं है, काफ़ी बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत पैसा भी देना पड़े तो बेटर रहता है। इसी तरीके से जब हम डायमंड खरीदते हैं तो उसमें भी सिस्टम्स आते हैं, GIA है और एजेंसीज हैं जो उनको टेस्टिफाई करती हैं, उनके कलर कम्बिनेशन बताती हैं, उससे रेट बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे भी मार्केट में आप खरीद सकते हैं डायमंड को, ऐसी बात नहीं। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके अगर आप एक स्टैंडर्ड लेते हैं तो आपको मन की तसल्ली रहती है कि आपको जो चीज़ मिली है खरी मिली है, उसमें कोई खोट पर नहीं है। कुछ प्रमुख खबरों पर त्वरित नजर डाल के फिर समय रहा तो सुब्रत जी के कॉल जरूर शामिल करेंगे। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। जापान का निक्केई सूचकांक लगभग 1% की गिरावट पर बंद हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी दोनों में 0.2% से अधिक का नुकसान दर्ज हुआ। हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.24% की बढ़त दर्ज हुई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.21% बढ़कर बंद हुआ। प्रमुख यूरोपीय बाजारों में भी रुख मिला जुला था। दिन के कारोबार में लंदन का फुटसी 0.1% से अधिक की गिरावट पर था और जर्मनी के डैक्स में भी 0.09% की गिरावट थी। हालांकि फ्रांस का कैक 0.1% से अधिक की बढ़त पर था। And let's have a look at the crude oil prices. Oil prices rose marginally today. Meanwhile, traders awaited economic data from China and the US due later this week to assess growth in the world's 2 largest oil importers. Brent crude was trading at $74.22 per barrel, rising slightly by 0.07%. WTI crude also added over 0.1% to trade at around $70.72 per barrel, according to the latest reports. उधर सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.1% बढ़कर 76,820 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 0.07% बढ़कर 88,980 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.1% बढ़कर 76,621 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.07% बढ़कर 88,951 रुपए प्रति किलो पर था। बहुत ही कम समय बचा है। सुब्रतो जी, हम आपसे माफी चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े लेकिन इस अंक में हम आपका कॉल नहीं ले पाएंगे। सैटरडे को आप हमें जरूर फोन करिए और जो भी आप जानकारी
प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपको वेलकम करेंगे। और अमन जी, आप आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने हमारे सभी श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथ ही हमारे उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with losses of over 0.5%. Sensex falls 451 points. Nifty settles below 23,650. Markets in Asia and Europe display mixed trend, and inflation likely to decline in 2025, says RBI Governor Sanjay Malhotra. Also advises caution as the medium-term outlook continues to remain challenging due to extreme climate events, amongst others. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.